Yes, I want to see books in everybody's hands. Show me your books, bete. Yes, so we'll be discussing this chapter, Pinocchio. All right. So Pinocchio, the first thing that you need to know is कि इसे Pinocchio नहीं बोलना है. The pronunciation for this word is Pinocchio, right? It is Pinocchio. Okay. So let us start. Please look at your books. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. Okay. Bete, who has unmuted himself? Bete, don't disturb, please. Look at the books, everybody. I'm looking at you in the this videos. So, once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. What is queer? Can anybody tell me quickly? Manobal, quickly tell me better what is queer. जल्दी से. Whether you know or you don't know. हाँ जी जल्दी बोलिए. Yes, good morning. Ma'am, I don't know. Okay. Can anybody else tell me? Write your name in the chat box. Japnoor, can you tell me queer? What is queer piece? Ma'am, unusual. Sorry. Ma'am, unusual. Unusual. Unusual is a very tough word. Okay. Unusual means strange, which is not very commonly found. एक अजीब सा strange. Okay. So you can write down. Please write down the words, meanings of the words. That's why I told you to hold the pencils in your hands. So queer means strange. ठीक है. Unusual. So एक बार एक कारपेंटर था जिसे एक बड़ा अजीब सा piece of wood मिला. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop, you're tickling me." Now, what is plane? Plane, plane. Who will tell me what is plane here? Yes, Tripti Kumari, please unmute yourself and tell me. Do you know what is the meaning of the word plane here? Plane, plane. Tripti? Ma'am, can I tell? I'm asking Tripti. Tripti, if you will not better respond, you will be removed from the class. Very nice. She never responds. Okay. Hitesh, you tell me, bete, what is a plane here? Ma'am, carpenter's tool. यस का प्लेन हेयर PLANE प्लेन के स्पेलिंग सेम है लेकिन यहाँ प्लेन का मतलब एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है. दिस इज अ टूल दैट इज यूज्ड बाय अ कारपेंटर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर इन द बुक, आप बुक में देख सकते हैं जिससे ये वुड के पीस को जो पील ऑफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन. ठीक है. ही इज होल्डिंग द प्लेन इन हिज हैंड अगर आप देखेंगे तो. सो प्लेन हेयर इज विच वर्ड? प्लेन और प्लेन, यहाँ दो वर्ड्स मैंने आपको प्लेन बता दिए. Now, can you tell me which, what do you call such words if you remember? Gurleen, can you tell me बेटा PLANE plane and PLANE plane, मैंने दो अलग अलग words बताए हैं meanings. So what are these words called? मैम जो मैम प्लेन है मैम वो फ्लैट होता है सीधा वाला PL नहीं मैं I'm और asking you इन words को हम क्या कहते हैं? Do you remember? हमने पहले भी किया PT3 में, PT2 में. I told you ऐसे words को हम क्या बोलते हैं? Yes, Japnoor wants to tell. मैम Anybody else? आई नो बट Yes. मैम हाँ हाँ. मैम होमोफोन मैम Homophone. एच से कुछ ऐसा होता है एच से who said homophones? First tell me. होमोफोन है अच्छा, who told this answer, homophones? मैम आई Who's I? Japnoor. Japnoor. नूर Okay, Japnoor, is it homonym or is it a homophone? मैम होमोफोन्स Why? How? आई डोंट नो I don't know. Anybody else wants to try? मैम Yes. मैम वो सेम होते हैं पर बोलने में अलग होते हैं पहले आप मुझे ये बताइए, why your camera is off? Kavya, I think it's you. हाँ जी, why did you switch off the camera again? I told you not to switch off, no, right? No, I don't want your camera to be switched off. Okay, yes, Kavya, what is the answer? मैम वो बोलने में सेम होते पर लिखने में अलग अलग स्पेलिंग्स होते हैं उसके वो होते हैं होमोफोन्स. ठीक है. सो यहाँ जो मैंने आपको बताया वो होमोफोन बना या होमोनिम बना? हियर इट इज होमोनिम, क्योंकि उसके स्पेलिंग भी सेम है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग्स अलग अलग थे. सो दिस इज अ होमोनिम, दिस इज नॉट अ होमोफोन. होमोफोन का एग्जांपल दूं मैं? जब इट इज PLANE प्लेन एंड PLAIN प्लेन, ये है होमोफोन्स. वाई? बिकॉज दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है.
ठीक है, जब स्पेलिंग भी सेम होते हैं ना तब वो होमोनिम होते हैं, राइट जपनूर, याद आ गया? ओके। सो जब उसने उसके ऊपर प्लेन चलाना शुरू किया, अपना वो जो टूल था वो उस वुड के पीस पे चलाना शुरू किया, तो उसमें से एक आवाज उसे सुनाई दी, एंड इट सेड स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी, रुको रुको तुम मुझे टिकलिंग कर रहे हो। टिकलिंग करना मीन्स गुदगुदी करना, राइट? द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। ओल्ड मैन था जो कारपेंटर था, वो हैरान हो गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। नाउ व्हाट इज पजल्ड हियर, विच पार्ट ऑफ स्पीच विल टेल मी? वेट वेट वेट, Kamakshi, please unmute yourself and tell me, bete, what is a puzzled here? Which part of speech is it? मैम Yes. puzzled Hmm. मैम आई नो Bete, this is not the way. Let her try. No, she's trying, है ना? हाँ जी बेटे बोलो. Puzzled is sorry, Kamakshi. मैम adverb No, how come it is an adverb? Okay, Harshika, unmute yourself, bete. Harshika, good please. morning मैम Good morning, bete. Harshika, yes, you have written adjective here. मैम यस हाँ जी, why it is an adjective, बच्चे? मैम क्योंकि puzzled का मीनिंग होता है Okay, Harshika, you are not audible. Yes, the answer is it is an adjective. Puzzled word यहाँ पे adjective है. आपने ये नहीं सोचना कि puzzle का second form of the verb है और ये verb है. No, it is not a verb here. It is an adjective. So the old man was puzzled by the voice. Old man जो था वो puzzle हो गया, हैरान हो गया कि आवाज कहाँ से आ रही है. He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it?" उसने कहा कि कितना अजीब सा पीस है वुड का, इसके साथ मैं क्या करूं? I think I'll make it into a puppet. उसने कहा कि क्योंकि वो जो वुड का पीस है ये बोलने वाला पीस लग रहा है, सो इसको मेरे को लगता है कि मैं इसे क्या बना दूं, एक पपेट बना दूं, राइट? He set to work and the puppet boy took shape. Now he set to work. He set to work. Can anybody tell me इस phrase का क्या मतलब है, इस group of words का क्या मतलब है? He set to work का. Hmm. Jayant Makkar, please unmute yourself. जयंत मक्कर. यस मैम हाँ जी बेटा, सेट टू वर्क इसका क्या मतलब होगा? कैन यू टेल मी? रीड मैम आई दिस, डोंट नो रीड द सेंटेंस, यू विल बी एबल टू. ऐसे तो हम गेस करते हैं, पूरा सेंटेंस को पढ़ो और हम वी कैन गेस आउट. गेस तो कर सकते हैं हम, जब सेंटेंस पढ़ लेते हैं ना उससे हमें आइडिया मिल जाता है. मैम उसने काम करना शुरू कर दिया वेरी गुड, यस, ही सेट टू वर्क मतलब उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया. ही सेट टू वर्क एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप द ओल्ड मैन सेड. उसने काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पपेट को वो शेप देने लगा, और जैसे जैसे वो पपेट को शेप देने लगा ओल्ड मैन ने क्या कहा? ही मस्ट हैव अ नेम, आई विल कॉल हिम पिनोकियो. कि ये पपेट तो मैं बना रहा हूँ लेकिन इस पपेट का कोई नाम भी होना चाहिए, इसको मैं क्या कह के बुलाऊंगा? पिनोकियो. आई एम रिपीटिंग अगेन, इसे पिनोचियो कोई नहीं बोलेगा, इट इज पिनोकियो, right? So I'll call him Pinocchio. As soon as he finished making the eyes, as soon as he finished making the eyes, can anybody tell me the meaning of this? As soon as he finished making the eyes. Gursimar, please unmute yourself. Gursimar, I think you're there. कि जब हाँ जी बेटे. मैम गुड मॉर्निंग Yes. मैम Good morning बेटे, बोलिए बोलिए. तक All right, there's some network issue, I think. All right, so I'll explain. As soon as he finished making the eyes, कि जैसे ही उसकी eyes puppet की बननी खत्म हुई, मतलब कि जैसे ही वो बन गई, the carpenter was amazed to see them move. Amazed to see them move means, amazed means, yes, amazed. Uh, Falika. Falika, first you have to rename yourself. You have entered with the name Gavish here. Falika, yes, bete. मैम Hmm. गुड मॉर्निंग मैम Good morning, Falika. Yes, bete बोलिए. What is the meaning of the word amazed? अमेज्ड मतलब मैम हैरान Heran. Can you tell me a word in English for this? You have done so many words. We have done this word earlier also.
Amazed के लिए can you tell me something in English? Surprised. Very good, very good. Surprise. So please, whenever I'm telling the meaning of any word, I hope you people are writing down with the pencil. Okay. So as soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. कि जैसे उसने eyes बनानी खत्म की, उसकी जैसे ही eyes बनी puppet की, वो उसने देखा कि वो puppet की जो eyes हैं वो क्या करने लग गई हैं, move करने लग गई हैं. तो वो बहुत हैरान हुआ कि puppet की wood के piece की eyes कैसे move कर रही हैं. Before the mouth was made, it began to laugh. Before the mouth was made, और अभी माउथ उसका पूरा बना भी नहीं था, उस वो पपेट जो था वो हंसने लगा. ठीक है, हंसने लगा कैसे, मीन्स उसको उसकी हंसी सुनाई देने लगी. स्टॉप लाफिंग सेड द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन जो कारपेंटर था उसने उसको बोला कि हंसना बंद करो. It did not, sorry, it did stop, but as soon as his back was turned, it put out its tongue. ठीक है, उस वो रुक तो गया उसके कहने पे, जैसे उसने कहा कि चुप हो जाओ, हंसो मत. तो क्या हुआ, जैसे ही उसने अपनी बैक उसकी तरफ टर्न की, मतलब फेस उसके तरफ से दूसरी तरफ फेस किया, पपेट की तरफ जैसे उसकी बैक हुई, इट पुट आउट इट्स टंग. उसने अपनी टंग निकाली, किसके लिए, किसको दिखाई, मतलब टंग निकाल के जो कारपेंटर था उसकी तरफ टंग निकाली. ऐसे आप लोग करते हैं ना, द सेम थिंग यू पीपल डू, लाइक यू डोंट टेक आउट योर टंग्स, बट इन द क्लास व्हेन द टीचर टर्न्स हर बैक, जैसे ही मैम बोर्ड पे कुछ लिखने लगती हैं, आप लोग क्या करते हैं, यू क्विकली स्टार्ट गॉसिपिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाते हैं कि मम्मा मैम तो देख नहीं रहे हैं, चलो फटाफट से बातें कर लेते हैं. तो इन द सेम वे जो पपेट था उसने अपनी फटाफट से उसको टंग दिखाई, एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्गर. और जैसे ही उसने टंग दिखाई तो क्या हुआ, उसका जो नोज था वो थोड़ा सा लंबा हो गया. Now, no sooner were its hands ready. Who'll explain this? No sooner were its hands ready. Who'll explain this? Kiran. Ma'am. Kiran, can you please explain this? No sooner were its hands ready. Yes. जैसे ही उसके नाक के बाद उसके जब भी हैंड बन गए. Yes. No sooner means जैसे ही, उसके जैसे ही हैंड्स रेडी हो गए, मतलब कारपेंटर ने जैसे उसके हैंड्स बना दिए, फिर क्या किया उसने, देन it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. What is snatched? Snatched word का मतलब बताएंगे मुझे. Wig. Did I ask you anything, Kavya? Bete, did I ask you anything? Don't unmute yourself like this, okay? Harnoor Kaur, please unmute yourself and tell me the meaning of the word snatched. Harnoor Kaur. Your camera is off. Why? Harnoor, can you listen to me? Very nice. बहुत अच्छी बात है. You never reply. Ma'am, I don't know. And why your camera is off? Tell me that also. Hanur, why your camera is off? Give me the reason for that. Very nice. You take the mobile with you. Ma'am, can I tell? Wait a minute. Beta. Yes, Jasnoor. Tell me. Jasnoor, what is the meaning of the word snatch? मैम स्नैच का मीनिंग होता है छीन लेना. Yes, snatch कर लेना, किसी से कोई चीज छीनना, राइट. सो जैसे ही उसके हैंड्स रेडी हुए, उसने क्या किया, उसके हाथ, अपने जो कारपेंटर था, ही वाज वेयरिंग अ विग. यू ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ विग. विग इज अ आर आर्टिफिशियल हेयर दैट पर्सन वियर्स. अगर किसी के बाल नहीं है तो जो आर्टिफिशियल बाल लगा लेता है, तो दैट इज कॉल्ड अ विग. सो उसने जैसे उसके हैंड्स बने, उसने फटाफट कारपेंटर की जो विग थी वो स्नैच की, खींची उसके सर पे से, एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड. और उसने उस विग को अपने सर पे लगा लिया. ऑब्वियसली जो पपेट था वो बाल्ड था. बाल्ड मीन्स गंजा था, उसके बाल थोड़ी ना थे. तो उसने क्या किया, अपने सर पे बाल कैसे लगाए, विग लगा ली. एंड देन पिनोकियो's नोज ग्रू लॉन्गर. और जैसे उसने ये वाला काम दोबारा किया तो उसका नोज क्या था, दोबारा थोड़ा सा और लंबा हो गया. नाउ कैन यू टेल मी उसका नोज कब बड़ा हो जाता था? कैन एनीबडी टेल मी उसका 2 टाइम्स नोज बड़ा हुआ कब हुआ? मैम can I? No, 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 wait for me to ask. Japjeet Kaur. Yes, Japjeet Kaur. मैम जब वो झूठ बोलता था तब उसका जो नोज था वो लंबा हो जाता था. जपजीत, क्या उसने अभी यहाँ पे कोई झूठ बोला बेटा? मैम नो. तो फिर
फिर क्या किया उसने अभी 2 बार? मैम उसने जब कोई वो शरारत करता था शरारत करता था, यस वेरी गुड, जब वो कोई कुछ मिसबिहेव करता था, तब उस रूड बिहेवियर, यस वेरी गुड, वेरी गुड जपजीत। जब वो अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि वो 2 टाइम उसने क्या किया, रूडली बिहेव किया, मिसबिहेव किया। तो जब वो मिसबिहेव करता था उसका जो नोज था वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता था। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। When its legs and feet were made, they were so stiff to use, so the carpenter showed Pinocchio how to use them. और जब उसके legs बनाए कारपेंटर ने, उसके feet बनाए, they were too stiff to use. Now, Jaya, just a minute. Harvin Sodi, unmute yourself, बेटे. Harvin. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. Harvin, tell me what is the meaning of this? They were too stiff to use. हितेशी, wait a minute बेटे. Ma'am, I don't know. Stiff का मतलब क्या होता है? Do you know what is the meaning of the word stiff? Harvin? Ma'am, can I tell? Okay, Lipika will tell me. And Lipika, you will also tell me the reason why your camera is off. Lipika, quickly. मैम आपके बीच में क्रैकिंग होती है मनोबल, मैम, प्लीज बीच में। कोई बात नहीं, आप म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, लिपिका. लिपिका, यस मैम। बेटे, why your camera is off? Why was it off? If you have any reason, you can tell me. हाँ जी, कैमरा क्यों ऑफ था बेटे? भैया पढ़ रहा है? He is having his class. Mihir is having his class with you. Lipika, is Mihir having his class with you? You won't say a word. बेटे वो क्लास उसके अटेंड करे, आप म्यूट रखो अपने आपको, कैमरा तो नहीं ऑफ करने की जरूरत ना आपको इन दैट केस. Yes, Madhav, please tell me the meaning of the word stiff. हम जैसे वो ना चल नहीं पा रहा था. चल नहीं पा रहा था. स्टिफ का मतलब बस यही होता है. आई वांट द एग्जैक्ट मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिफ का मतलब मुझे बताओ. इस सेंटेंस का बाद में पूछूंगी मैं आपसे. जस्ट टेल मी. माधव, why your camera is off बेटे? माधव, why your camera is off by the way? आप लोगों को बेटे, why don't you people understand what I tell you all the time? Do you want to be removed from the class बेटे? Madhav, now if your camera will be off, ma'am, please remove the students who don't have any reason. Okay, ma'am. Okay. This is sheer misbehavior. कि आप लोगों को पता ही नहीं टीचर क्या बोल रहा है आपको करने के लिए. एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटे, हितेश. मैम स्नैच्ड का मैम हम दूसरा वर्ड इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? स्नैच्ड. स्नैच के लिए आप पुल वर्ड यूज कर सकते हैं. मैम स्नैच्ड. आप पुल, he pulled it from him. ओके पुल्ड. Okay. Yes. All right बेटे. Can I tell the meaning of stiff? Yes. मैम अकड़ जाना। अकड़ जाना, वेरी गुड। स्टिफ मींस अकड़ा हुआ होना, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता। आप देखते हैं कई बार विंटर्स में आपकी कुछ चीज़ें एकदम स्टिफ हो जाती हैं, प्लास्टिक की स्पेशली चीज़ें, वो आप अगर मोड़ना चाहें तो वो नहीं हो पाती हैं। वाई? बिकॉज दे बिकम स्टिफ। स्टिफ मीन्स अकड़ा हुआ होना या बिल्कुल हार्ड हो जाना, दैट यू कांट चेंज द शेप ऑफ दैट थिंग, राइट? ओके, सो वी वर यस, दे वर टू स्टिफ टू यूज। वो इतने हार्ड थे उसके लेग्स और उसके फीट कि वो उन्हें यूज नहीं कर पा रहा था। हैव यू, डू यू पीपल, मतलब हैव यू एवर, काव्या बेटे, this is the last warning to you and you are playing with your camera again and again. Yes, so आपने देखा है जब आप चलते हैं आपके नीज जो होते हैं वो बैंड होते हैं ना, नीज बैंड होते हैं ना, आपके गोडे जो है वो मुड़ते हैं ना। अगर वो नीज बैंड नहीं होंगे तो विल यू बी एबल टू मूव नाइसली? आप स्टिफ हो गई सपोज, तो उसकी जो लेग्स थी वो स्टिफ थी, उसके नीज नहीं थे बने हुए और उसके नीज जो थे वो फोल्ड नहीं हो पा रहे थे, सो दैट्स व्हाई इट वाज स्टिफ, और इसीलिए उसे चलना नहीं आ रहा था। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम।
सो कारपेंटर ने पिनोकियो को सिखाया कि उसे कैसे अपने लेग्स और फीट को यूज करना है. नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल. अब इसके बाद कारपेंटर ने डिसाइड किया कि मैं पिनोकियो, अब क्योंकि ये प्रॉपर एक बॉय की शेप ले चुका है, आई विल स्टार्ट सेंडिंग हिम टू स्कूल. मैं उसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दूंगा. बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन. अब पिनोकियो को जब स्कूल में भेज तो दिया कारपेंटर ने, लेकिन वो वहां जाके भी कुछ नहीं करता था. व्हाट ही डिड, he always looked for fun. Looked for fun. Who'll explain me? Nidima, unmute yourself. Can you tell me what is the meaning of this thing? Look for fun. मैम हमेशा फन करता था. Look for fun means वो कोई ना कोई शरारत करने का तरीका ढूंढता रहता था, राइट? उसका मतलब उसका ध्यान हमेशा शरारतों में लगा रहता था और वो सोचता कि क्या उल्टा काम करूं या क्या शरारत करूं. He always looked for fun. He often ran away from school. Now, Nibandh will tell me the meaning of the word often. We have done this word so many times in grammar also. Nibandh, often. Nibandh. Good morning, ma'am. Yes, good morning. मैम मेरे को एक और डाउट था. मैम वो आपने करवा दिए तब नेट प्रॉब्लम थी. मैम बोलिए. स्नैच का क्या मतलब होता है? Snatch. ऑफ. कोई चीज खींच लेना, जबरदस्ती ले लेना. ओके. हाँ जी. Yes, बेटे, whom did I ask? Yes, Nibandh. Quickly tell me, बेटे, often का meaning क्या होता है? What is the meaning of the word often? Sorry? Why? उसने सोचा. Who said this thing? उसने सोचा. often का मतलब किसने बताया मुझे ये वाला मतलब? Who told me this? Nibandh, where are you, bete? Very good. Okay. Then Liv, can you tell me the meaning of the word often? We have done this word so many times during our grammar chapters also. Kinds of pronoun में किया हमने, adjective में किया. Yes. Very nice. Okay, Manobal. Good morning, ma'am. Good morning, bete. Sir. अक्सर, बहुत बार. Yes, very often means काफी बार. तो वो क्या करता था? वो बहुत बार अक्सर वो स्कूल से भाग जाता था. So आगे चलेंगे. Why don't you go to school? Asked the carpenter. Carpenter ने उसको बोला कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बार बार स्कूल से भाग जाते हो. Pinocchio told him a lie. अब पिनोकियो ने उसको एक झूठ बोला. क्या बोला? And his nose started growing longer and longer. और जैसे उसने झूठ बोला, उसका जो नोज था वो बड़ा होता चला गया और बड़ा होता चला गया. So that means उसका नोज दो केसेस में बड़ा होता था. One, when he used to misbehave, जब वो रूड बिहेव करता था, गलत बिहेव करता था, या जब वो झूठ बोलता था, दोनों ही केसेस में उसका नोज जो था वो लंबा हो जाता था. Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. So that is what I told you कि जितनी बार भी वो रूड होता था किसी के साथ और वो झूठ बोलता था, उतनी बार उसका नोज बड़ा हो जाता था. Finally Pinocchio said, और finally Pinocchio ने क्या कहा? I'm glad to be a real boy. I'll never lie again. और Pinocchio ने finally कहा उसको, कारपेंटर को, कि I'm glad. Now who will tell me the meaning of the word glad? Neha, unmute yourself, bete. And Neha. Neha, I hope I am audible to you, Neha. Unmute yourself. Yes, ma'am. Where's your camera? Why was your camera off? I think you're muted. Unmute yourself and then tell me. Yes, Neha. Where were you, bete? Why was your camera off? मैम मैं चैट बॉक्स में थी. What does that mean? That doesn't mean your camera will be switched off. Alright, fine. So I'm glad to be a real boy. Glad का meaning क्या है? नेहा जल्दी से बताइए please. We don't have time. Quickly. Glad. Glad is to be happy. I'm happy. Yes. So I'm glad to be a real boy. I'm happy to be a real boy. उसने कहा कि मैं एक real boy की तरह बन गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. I'll never lie again. और मैं आज के बाद कभी झूठ दोबारा नहीं बोलूँगा.
Okay, so I hope this chapter is clear to you. And next thing what I want to tell you quickly is कि I've sent you some back exercises. But the back exercises आपने जल्दी से देखिए कौन कौन सी करनी है. पेज नंबर 100 इसके बाद ही नेक्स्ट जो पेज है आपका उस पे एक एक्सरसाइज है आपकी जिसमें पिनोकियो की पिक्चर बनी हुई है. व्हाट इज दैट पेज नंबर 150? Nirvana, which page is that? Ma'am, 160? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वर्ड फन प्लीज क्विकली टिक मार्क कर लीजिए. वर्ड फन में आपने ये वाला एक्सरसाइज करनी है 160. कम टू 161. 161 पे जल्दी से टिक कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, देन कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करना है आपने, 4 नहीं करना है. You have to do question number 5 and 6. That's it. And then I have sent you true false. ठीक है, true false will be done in the notebook because वो अपने आप से frame किए हुए हैं, so that you will be doing in the notebook. Rest of the exercises that I've told you will be done in the book only, right? Okay. Anything else, please, you want to know? You can ask. Excuse me.